Good morning, student. Again, welcome in my class. Student, in the previous lecture, we have discussed exercise 4.1 of simple equation. Now, again, we will discuss about the same chapter but exercise 4.2. The first topic of this exercise is solving an equation. Okay. Now today we will discuss about how can we solve if an equation are given, how can we find the value of the variable in the different cases. Okay. We should learn some basic property of this, a basic idea about to solving the an equation. Okay. Okay, let us start. The first topic of this equation is if we in the given equation, अगर कोई इक्वेशन दिया है, if we add or subtract same number on LHS and RHS are remain same. अगर किसी इक्वेशन में अगर मैं LHS में जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, अगर वही वैल्यू अगर मैं RHS में ऐड कर रहा हूँ तो उस इक्वेशन का में कोई इफेक्ट नहीं होगा. सेम if we multiply or divide the same number on both sides as well as LHS and RHS, they remain same. Okay, first if we add or subtract the same number on both side in equation, in given equation. Okay, in given equation are remain same. If we add or subtract the same number on both sides in a given equation are remain same. अगर मैं सेम नंबर से दोनों तरफ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो उस इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो इक्वेशन फिर से इक्वल ही रहेगा. सेम सेकंड पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द सेम नंबर on both side equation will remain same. It means there is no any effect in the equation if we multiply, divide, add or subtract the same number on the both side in the given equation, then the value of the variable will be remain same. Suppose for example x plus 2 is equal to 4. Okay, x plus 2 is 4. इस इक्वेशन में if we add 1, x plus 2 plus 1, 4 plus 1, तो यहाँ हो जाएगा x plus 3 is equal to 5. This equation and this equation are the both are the same equation. ठीक है. If we add the same number on the both side in a given equation or subtract the same number on the both side or multiply or divide the same number on the both side, the value of the equation will be remain same. If we subtract, मैं अगर इसको ट्रांसपोज करूँ तो प्लस में है तो माइनस जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, फिर भी 2 बचेगा. तो these are the properties in front of you for solving the equation. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए हमको LHS में बस x के अलावा y, इट मीन्स वेरिएबल के अलावा कोई टर्म नहीं आना चाहिए, ना कोफिशिएंट होना चाहिए, ना तो कोई अलग से उसके साथ प्लस या माइनस के साथ कोई टर्म होना चाहिए. तो जो भी प्लस और माइनस साथ जो भी टर्म है, तो अगर प्लस 3 है तो हम क्या -3 करेंगे, ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड, ताकि हम सॉल्व करके केवल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें. ओके, so let us start exercise 4.2. The question first is given, give first the step
you will use to separate the variable and then solve the equation। हमको इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको बस x की वैल्यू फाइंड करना है। उस x के साथ तेज का जो आपका है x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ -1 है, सो वी टेकिंग एडिशन। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वी यूज सब्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 है, तो जो डिजिट यहाँ पे है उसी डिजिट को हम LHS और RHS में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। अभी देखिए हमने LHS में भी 1 ऐड कर दिया और RHS में भी 1 ऐड कर दिया। तो ये +1 -1 0 हो जाएगा, x + 0 और 0 + 1 1 होगा। अगर किसी भी नंबर को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही नंबर आ जाता है, x + 1 = 1। अगर इस LHS में अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 - 1, तो हमको RHS की वैल्यू मिल जाएगा 0। सेम अभी देखते हैं x + 6, ओके, यहाँ +6 है तो हम क्या करेंगे, -6 दोनों तरफ ऐड करेंगे, या फिर वी कैन से सब्ट्रैक्टिंग, ओके, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड वी गेट, ओके, x + 6 है, -6 है, 2 है, -6 है। जो अगर हम 6 LHS में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको 6 RHS में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। अभी चेक करते हैं, ये +- 6 कैंसिल हो गया, x बचेगा। अब 4 में से 2 में से 6 जाएगा, प्लस माइनस है तो वी ऑलवेज यूज सब्ट्रैक्शन। 6 में से 2 जाएगा 4। देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 वैल्यू बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, सो वी यूज अ नेगेटिव साइन। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज -4। LHS में अगर हम x की जगह अगर हम -4 पुट करते हैं तो हम RHS की वैल्यू आप पे अगर 2 मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका x की वैल्यू हो गया। उसी तरह से अब हम चेक करते हैं इसका g पार्ट, ठीक है। g क्वेश्चन है आपका इसी का, द g पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + 4 = y + 4 = 4, y + 4 = 4, इसका g पार्ट है फर्स्ट का, y + 4 = 4। हमको देखते हैं LHS में केवल y की वैल्यू चाहिए, y के अलावा कुछ भी यहाँ वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, राइट, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जाएगा y + 4 -4 हो जाएगा, 4 -4, ये कैंसिल हो जाएगा y, अब 4 में से 4 जाएगा 0, ओके। इट मीन्स इफ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ y is 4 in LHS then we get the value of RHS। इसका मतलब LHS और RHS की वैल्यू इस तरह से दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन, remaining part of the question first you will try. Let us start question number 2. Okay, question number 2 is like, give the first step you will use to separate variable and then solve the equation। यहाँ पे देखते हैं ये आपका 3l = 42, यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ओके। तो हमको केवल वेरिएबल चाहिए फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट। तो हमको कोफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी चेक करते हैं कोफिशिएंट में, अगर यहाँ 3 है तो कोफिशिएंट में जो वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ हम क्या डिवाइड करेंगे। अगर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव में तो वी यूज़ अ नेगेटिव टर्म फॉर डिवाइडिंग, ओके। तो लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड वी विल गेट, ओके। तो यहाँ देखते हैं 3l = 42 है, डिवाइड करेंगे 3 और 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स आ गया। 1 का किसी भी को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आएगा। और 3, ये 3 × 1 = 3, 1 आया, 1 बचेगा, 4 3 4 = 12। तो l की वैल्यू कितना आ गया, 14, ठीक है। तो यह आपको सॉल्व करने पर हम चेक करें l की वैल्यू क्या है, ये 14 है। जो इफ़ वी प्लेस the value of 14 in LHS then we
फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। तो हम इस L की वैल्यू अगर प्लेस करते हैं LHS में तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। तो ये आपका L की वैल्यू होगी। इसी तरह RHS में देखते हैं यहाँ पे 7 जो है वो डिवाइड के टर्म में है। अगर ये 7 डिवाइड के टर्म में है देन वी मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P। अभी इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 ऑन बोथ साइड वी गेट ओके P बाई 7 इंटू 7 4 इंटू 7 7 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स आएगा, P का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के 1 7 4 जा 28 ओके। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि आफ्टर सॉल्विंग वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 28। अगर मैं इस LHS में P की जगह अगर मैं 28 प्लेस करता हूँ तो हम RHS की जो वैल्यू है वो आपका 4 आ जाएगा ओके। तो ये आपका हो गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, इसी का जी पार्ट है, जी पार्ट में A/5 है, ठीक है। इसका जो सेकंड का जी पार्ट है A/5 इक्वल टू A/5 इक्वल टू 7/15 जी, A/5 इक्वल टू 7/15। तो फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमको A की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे A के साथ डिवाइड में है, तो हम क्या करें, जिस नंबर से डिवाइड है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 5 इंटू A/5 इक्वल टू 7/15 इंटू 5, ये A से कैंसिल हो गया तो आपको बचेगा A, और ये 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये आपका 7 1 जा 7/3। देन द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 7/3 ओके। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इफ़ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 7/3 देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल ट्राई। ये सेकेंड का क्वेश्चन नंबर ओके। तो थर्ड देखते हैं। जो थर्ड इसका है देख रहे हैं, इसमें आपका 2 स्टेप दिया है, एक तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन दिया है। सो वी यूज 2 स्टेप। इससे पहले फर्स्ट वाले में केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया था, सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिया था। तो पहले हम क्या करें, पहले हम जो n के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड उसको हम टच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ -2 है, तो सो लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड वी गेट ओके 3n - 2 + 2 इक्वल टू 46 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे -2 और +2 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका 3n 46 में से 2 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे 3n है, n के साथ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो अब जो n के साथ वैल्यू है उसी नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, 3n 48 3 कैंसिल हो गया, ये 4 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो अभी हम चेक करते हैं, तो n की वैल्यू कितना आ गया 16, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी चेक करते हैं यहाँ पे n के साथ कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट नहीं है, तो अब ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर मैं LHS में n की जगह अगर मैं 16 पुट करता हूँ तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RHS ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, you will try the remaining question and okay, thank you and have a nice day.